बोनजोर्नो, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार एंड गुड टाग। हम लोग यूज करना शुरू करते हैं। हमारा पहला जुमला है: Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Reihe von gefährlichen Kurven an, von denen die erste ist eine Rechtskurve। ये पहला नहीं है, ये एक ही कुर्वा है और रेस्ट जा रहा है, इसके लिए ये फालसो है। दूसरा जुमला देखो। Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, muss der Fahrer den Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug verringern. Falso. शाबाश। Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von Fahrzeugen, die Explosivstoffe befördern. Falso. तो ये किसको मना करिए आपके हिसाब से? आप लोगों को हाथ नहीं उठ रहे, आप लोगों के। समीर को नहीं पता था ये वेरो है, नसीर को नहीं पता था ये वेरो है। ये सब है। ये मना करती है सड़क के ऊपर कोई भी ऐसी चीज जो एक्सप्लोसिव स्टफे बिफोर्डर करती है, ट्रांसपोर्ट करती है, उनको मना है। ठीक है, ये बिल्कुल वेरो है। ये बिल्कुल इसकी वसाखत है। अगर कोई मुझे मुझे साइन का मतलब क्या है, तो मैं कहूंगा दस दस dieser Zeichen verbietet die Durchfahrt von Fahrzeugen, die Explosivstoffe befördern। Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Gebotszeichen. Vero. Das abgebildete Verkehrszeichen weist auf eine Zollstelle in der Nähe hin. Falso. Wenn man auf das abgebildete Verkehrszeichen trifft, muss man anhalten und nach 320 Metern nochmals stehen bleiben. Falso. Auf einer Gegenverkehrsstraße mit der in der Abbildung dargestellten Markierung darf man bei allen Sicht- und Verkehrsverhältnissen überholen. Vero. आले से यार, आप लोग के हाथ क्यों नहीं उठ रहे? सर मतलब पहले बेशक आपको नजर आए कि नहीं आए, फिर भी आप ओवरटेक कर सकती हो ऐसे हालात में। Falso. wenn man alle Sicht und Verkehr, मतलब ट्रैफिक ज्यादा हो या कम हो, फर्क नहीं पड़ता। नजर आए नहीं नजर आए तो भी फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसे सड़क पे ओवरटेक कर सकते हो, ये कह रहा है जुमला। Falso. आप लोग के हाथ जरा एक बार उठा के देखो, इलेक्ट्रॉनिक वाले उठते हैं कि नहीं, आपको पता चलता है कौन सा बटन दबाना है हाथ उठाने के लिए। अलीना को पता है, कुछ जवाब दे, उसको पता है कैसे उठाते हैं। आप लोग को नहीं पता चला हाथ कैसे उठाते हैं इलेक्ट्रॉनिक वाला। एनीवे, Das Leuchten des grünen Lichtes bei der in der Abbildung dargestellten Ampel erlaubt es den Fußgängern, die Fahrbahn zu besetzen, um sie zu überqueren. Vero. Die Ampel in der Abbildung zeigt einen unbeschränkten Bahnübergang an. Falso. Die Höchstgeschwindigkeit für ein Kraftrad beträgt in geschlossenen Ortschaften gewöhnlich 50 Kilometer in der Stunde. Vero. Der Bremsweg vervierfacht sich, wenn man die Geschwindigkeit verdoppelt. Falso. ये वेरो है। Vero. ऐसे अगर आपकी geschwindigkeit डबल करती है तो ब्रेक पे 4 गुना बढ़ जाता है, ये वेरो है। Wer die Fahrspur wechseln will, muss sich vergewissern, dass hinter ihm eine ausreichend lange Strecke der zu besetzenden Fahrspur frei ist. Falso. wer Fahrspur wechseln will, जो बंदा लेन बदलना चाहता है, ड्राइविंग लेन ना, muss sich gewissern, उस पर यकीन होना चाहिए, dass hinter ihm eine ausreichend lange Strecke, बोलते जहाँ मैं जिस लेन में फास्टपुर में जाने लगा हूँ, वहां पे अच्छी खासी खाली जगह है मेरे लिए दाएं हाथ मोड़ने के लिए ना। der zu besetzende Fahrspur frei ist। जो फास्टपुर में आप besetzen करने जा रही हो वो फ्राई है, तो ही आप लेन बदलोगे ना। अगर नई जगह सारी गाड़ियां भरी हैं तो कैसे बदलोगे? ये दोबारा सुनो Vero. और अपनी आवाज में Wer die Fahrspur wechseln will, muss sich vergewissern, dass hinter ihm eine ausreichend lange Strecke der zu besetzenden Fahrspur frei ist. Vero. Gemäß den Vorfahrtsbestimmungen fährt in der dargestellten Kreuzung das Fahrzeug C nach den Fahrzeugen R und A durch. Vero. Beim Wiedereinscheren nach dem Überholen auf der Autobahn muss der Fahrer mindestens 100 Meter vom überholten Fahrzeug entfernt sein. Falso. Die Ladung darf, wenn sie aus unteilbaren Gegenständen besteht, seitlich bis um zu 3/10 der Fahrzeugbreite aus dem Fahrzeug herausragen. Vero. सिर्फ समीर को पता था कि ये फालसू।
नासिर को नहीं पता है फाल्सो, ये कहते हैं साइक्लिक। नहीं सर, साइक्लिक साइक्लिक हाँ। पीछे 3/10 होता है। साइक्लिक कितना जी होता है, ले सकता है? साइक्लिक साइड मतलब साइडों में कितना ढेर सकता है सामान बाहर? नहीं पता ना, अब पता भी नहीं किसकी बात कर रहा हूँ मैं। एक तो मैं उर्दू में बोल रहा हूँ, सेकेंडली आपको ये सवाल पूछ रहा हूँ, साइडों में कितना सामान आपको बाहर ढेर सकता है? ये फोटो ले लो, पीछे ढेर अच्छा सकते हैं 3/10, साइडों में 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर। फोटो ले ली? जी जी और जी। मोटरसाइकिल में कितना ढेर सकता है नासिर? मोटरसाइकिल जी सर ज्यादा नहीं। तो एक बार पता था, अब याद नहीं है, ऐसे कह रहे हो? ये लो फोटो, आगे 50, पीछे 50, साइड में 50, दाएं बाएं हाथ 50 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जी 500। Der Airbag ist nicht zusammen mit den Sicherheitsgurten zu verwenden. falso, Bei Regen muss man das Anlaufen der Scheiben vermeiden. vero, Während man ein zweirädriges Kraftfahrzeug überholt, muss man insbesondere bei hoher Geschwindigkeit einen ausreichenden seitlichen Sicherheitsabstand einhalten. vero, Einem Verletzten im Schockzustand soll man einen Schluck hochgradigen Alkohol geben. falso, Die Aufnahme von Alkohol erleichtert das Fahren, weil dadurch die Konzentrationsfähigkeit steigt. vero, क्या? आपकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है अगर आप शराब पीते हो। falso, Als Personenkraftwagen bezeichnet man alle Kraftfahrzeuge mit Hinterantrieb. falso, Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt einen nicht beleuchteten Tunnel an. falso, Der abgebildete Leitpfosten zeigt ein Parkverbot an. falso, Die dargestellte Zusatztafel wird unter dem Zeichen Gefahrenstelle angebracht. falso, नहीं, ये वेरो है। ये अच्छा आपको मिलती है उनटद स्टेले गेफारन, और उसके साथ कौन सी मिलती है, ये गेफारन स्टेले के साथ नीचे कौन सी पट्टियां मिल सकती है, इसकी फोटो ले लो अभी। ये इनमें से एक है जो हम रास्ते की मरम्मत पेंटिंग कर रहे हैं, उसके भी ऊपर मिलेगी गफार साइन। शक्ल कैसी होती है? वो खतरे की साइन होती है एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ, और उस ये देखो ये वाली, और उसके नीचे आपको ये सारी चीजें मिल सकती है। इसके नीचे ये मिल सकता है कि बर्फ वाला रास्ता है, ये मिल सकता है, ये और उसके साथ ये आखिरी जो है ना, आखिरी जो यहाँ पे है, ये भी उसके नीचे है। और ये भी मिलता है इसके नीचे। ठीक है? तो ये 5 6 सिंबल्स होती है जो ये फारेस्ट टले के नीचे मिलती vero, है इसमें। Beim Halten muss der Fahrer sich so verhalten, dass er die anderen Verkehrsteilnehmer nicht gefährdet. vero, Das abgebildete Symbol steht auf einem Abblendlichtschalter. vero, falso, वेरी वेरो नहीं है, फाल्सो है। अच्छा प्लेन लिस्ट, ये ऑफ प्लेन लिस्ट। Wenn man auf öffentliche Straßen mit die Wette fährt, muss man mit dem Abzug von Führerschein berechnen. falso, आपको जेल होती है मुझे बताया, लेकिन आपकी पॉइंट भी कर सकती है शायद। अभी फालसो बोल तो देखते हैं मैम, ये वेरो होगा।
Die Haftpflicht für Schäden im Zusammenhang mit dem Betrieb von Fahrzeugen geht zu Lasten des Fahrzeuginhabers, wenn es sich um eine strafrechtliche Haftung handelt. Vero, अगर ये श्राफ रजिस्ट है तो गाड़ी का इनहाबर यानी बेजित्सर के ऊपर नहीं जाएगा केस, गाड़ी के ड्राइवर के ऊपर केस होता है, गाड़ी के मालिक पर नहीं। अगर वो दो अलग बंदे हैं, अगर आपकी गाड़ी कोई और बंदा चला रहा है, उसने किसको ठोक के कत्ल कर दिया तो जेल आप नहीं जाओगे, वो जाएगा ना। आप तो गाड़ी की मालिक थी, आप इनहाबर थी। ये श्राफ रजिस्ट verantwortung आप पे नहीं होता, तो फारा होता है, ठीक है। okay. Um die Luftverschmutzung zu verringern, darf man während der Fahrt nicht ständig beschleunigen und bremsen. Vero, Speigreifen können begrenzt auf eine bestimmte Zeit des Jahres verwendet werden. Vero, ये बेरो था, मैं बोला था ना ये बेरो होगा, ये आपकी पॉइंट कट होगी और जेल भी होगी बाय द वे। कुछ पूछना था किसी ने? नासिर ने, समीर तो है भी नहीं। नासिर ने कुछ पूछना था नहीं सर, सब ठीक है। तो कुछ नहीं। अब ये इसका जवाब देना। मेरे पास एक क्वेश्चन है। बोलो। इसमें नहीं है वो लाइट्स, अगर मैं आपको लिंक भेजूं तो आप ओपन करके बता सकते हैं कि किस गाड़ी चलाते हुए कौन सी लाइट्स ऑन करनी होती है? सवाल एक्चुअली है क्या? आप पहले लिस्ट मैं आपको वो पूछ रहे सेंड करती हूँ। ओके। एक लिंक है, आई थिंक आप ओपन हो जाए। एक मिनट, जैसे सेकंड। तो नासिर आप शुरू कर दो। Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist es notwendig, die Geschwindigkeit entsprechend den Sichtverhältnissen herabzusetzen. मेरे सर Wo das abgebildete Verkehrszeichen steht, ist es notwendig, auf die Kinder auf der Fahrbahn zu achten, nicht jedoch auf Nähne auf dem Gehsteig. was ist सर? Das abgebildete Verkehrszeichen gilt nur an Werktagen, falls nicht anders angezeigt. was ist सर? Das abgebildete Verkehrszeichen weist darauf hin, dass es erlaubt ist, nach rechts abzubiegen. मेरा सर Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet die Durchfahrt von Fahrrädern und von Kleinkrafträdern. was ist सर? Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Kreuzung mit Vorfahrt gegenüber den von links kommenden Fahrzeugen an, während man den von rechts kommenden Fahrzeugen die Vorfahrt gewähren muss. was ist सर? Die in der Abbildung dargestellte durchgehende Doppellinie ist auf gebührenpflichtigen Parkplätzen blau. was ist सर? Während das rote Licht der Ampel leuchtet, dürfen die Fahrzeuge die Haltelinie nicht überfahren. मेरा सर Bei den in der Abbildung dargestellten Ampeln zeigen die leuchtenden grünen Pfeile in die Richtung an, in die man weiterfahren darf. मेरा सर Auf Geraden, jedoch nicht in den Kurven, ist es Pflicht, die Geschwindigkeit anzupassen.
falso, sir. Der Sicherheitsabstand hängt von der Leistung des vorausfahrenden Fahrzeugs ab. Falso, sir. Um rechts abzubiegen, muss man die Geschwindigkeit allmählich herabsetzen, bis man die Stelle erreicht hat, an der man einbiegt. Falso, sir. किसी को नहीं लगता वेरो। तो देखो ना आप ये अल्फाज अलमेलिक अलमेलिक हराफसेन वाला आपको अक्सर वेरो में आएगा। क्या मतलब है इसका? recht abzubiegen, अगर आपका इरादा है दाएं हाथ मोड़ने का, muss man die Geschwindigkeit allmählich absetzen, आपने धीरे धीरे कम करते रहना है। जितनी आपकी मोड़ की तरफ मंजिल फासला कम होता रहता है, इतनी आपकी तेजी भी कम होनी चाहिए, जब तक आप उस पॉइंट पे पहुंचते हो जहाँ पे स्टेल अराइज हो जाती है, जहाँ पे मन अनबिग करता है। वही करता है, राइट करना है तो मैं धीरे धीरे जितने बार वो मंजिल वो पॉइंट आ रहा है, जब मैं राइट टर्न करता हूँ तब तक मैं गाड़ी धीरे धीरे स्लो करता रहूंगा, और जब राइट करता हूँ तो मैं स्लो करके राइट करूंगा। ये ऐसा ही है, दोबारा सुन लो। और allmählich herabsetzen आपको मिलेगा अक्सर वेरो में। Um rechts abzubiegen, muss man die Geschwindigkeit allmählich herabsetzen, bis man die Stelle erreicht hat, an der man einbiegt. Vero, sir. In der dargestellten Kreuzung fährt das Fahrzeug A nach dem Fahrzeug R und das Fahrzeug C nach dem Fahrzeug A durch. Falso, sir. अच्छा, मैं आपको, और आप लोगों के हाथ में, अली का हाथ में उठ रहा है, आपको भी हाथ में उठ रहा है, क्यों मुझे बताइए कि कंफ्यूज हो रहे हो? ये वेरो है। सुनो, ऐसा। ये समझने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको तकसीम करना है। पहले ये देखो, सबसे पहले मुझे बताओ चौक पहली दूसरी तीसरी गाड़ी कौन सी है? पहले जाएगी RAC। अच्छा, तो देखो ये कहते हैं आ nach dem Fahrzeug R, आ जाएगी एर के बाद। इतना सच है कि गलत है? जी। हाँ, और आ nach dem R, गड्डी आ जाएगी एर तो बाद। ये गल सच है या गलत है? गलत। नहीं, आप नहीं ना से वो देख रहे हैं, उनको भी समझ आ रही है, लेकिन वो उसके मुंह से निकलता नहीं है। जी। ये ए गाड़ी आर के बाद जाएगी, ये बात सच है कि नहीं सच है? हाँ? यार दर्द, थोड़ी मर्दों वाली आवाज में बोलो ना जरा। जी जी, राइट है, ये सच है। हाँ, और उसके बाद में देखो, बाद में तकसीम करना है, मैं सिखा रहा हूँ कैसे करना है। फारसोइक से नाख्तेम आ, सी जाएगी आ तो बाद। ये वेरो है कि गलत है? वेरो। तो सब दोनों वेरो बोला ना उसने, दोनों सच बोले। लेकिन पता है ये क्या उल्लू बना रहा है? ये नहीं कहते आर ए सी, कहते ए जाएगी आर के बाद, लेकिन सी जाएगी ए के बाद। तो एक्चुअली क्या, ही तो वही रहा है ना, आर ए सी कह रहा है ये, है ना? समीर को पता चल गया कि पता नहीं था उसको पहले? अल्लाह को समझ आ गई अलीना? जी। और वेरो है ये। Es ist verboten, einen zum Ein- und Aussteigen der Fahrgäste stehenden Autobus zu überholen. फाल्सो सर। अलीना ये फालसू ही है। पता है क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक बस रुकी हुई है सड़क के ऊपर मुसाफिरों को उठाने के लिए, बोलते हैं, इस ऐसे बस को ओवरटेक नहीं कर सकते। वो बड़ा उतारता रहे, हम क्यों नहीं ओवरटेक कर रहे हैं उसको? कोई वजह नहीं कि उसको ओवरटेक कर सकते हैं। फालसू है ये, ऐसे सपोर्ट नहीं है। Die abgebildete Tafel muss rückleuchtend sein. muss वेरो सर। Der Nutzen der Sicherheitsgurte im städtischen Verkehr ist vernachlässigbar.
सर का मतलब फिर नागली गैरअंदाज करने लायक है। टेस्ट है अगर आप शहर के अंदर ही गाड़ी चला रहे हो तो सीट बेल्ट पहनना या ना पहनना गैरअंदाज करने लायक है। जी falsa Auf vereisten Straßenabschnitten ist es angebracht, den Sicherheitsabstand zu erhöhen. wäre sir Es ist erlaubt, die Fahrleistung des Fahrzeugs zu verbessern, indem man die Einstellungen der Elektronik ändert, welche die Treibstoffeinspritzung steuert. फर्स्ट भी समझ नहीं आई अलीना ये वेरो फाल्सो है। अलीना आपको पता है ये वेरो है कि फाल्सो है? नहीं पता तो फाल्सो हाँ ये फाल्सो है। कहता है एसिस अलाउड, आपको इजाजत है फार लाइसेंस फास्टैग फॉर। देखो आपको फार लाइसेंस पर ना फॉरबेसन करने की इजाजत है, ना मोडिफिकेशन और एंडन, ये सब गलत है। ना बदलने की इजाजत है, मॉडिफाई करने की इजाजत है, ना बेहतरी लाने की इजाजत है। वो चीजें आप हाथ लगानी नहीं है फाइल लाइसेंस। ठीक है, ये फाइल लाइसेंस को उसके ऊपर आप आइंशपिच बोलते हैं, ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक वो बदल के ट्राइटॉप स्पिच पता है, जो इंजेक्शन होते हैं जहाँ पे बूंद बूंद से पेट्रोल डीजल जाती है सिलेंडर के अंदर, उधर आपने बूंद कट्टी बड़ी कर दी, बहुत ज्यादा डीजल जाएगा और गाड़ी बहुत तेज चलेगी, आपका पेट्रोल ज्यादा इस्तेमाल होगा और गंदगी ज्यादा होगी। ये सारी चीजें हम आपको करने देते नहीं है, किसी को प्राइवेट बंदे को, मैकेनिक करते हैं ये। जी falsa Wenn ein verletzter Verkehrsteilnehmer eine starke äußere Blutung hat, braucht man nur diese zu behandeln. wäre sir In Italien dürfen wir keine Personen behandeln mit Medikamente oder irgendwas, बलम या किसी चीज से हमको इजाजत, सिर्फ डॉक्टर और फार्मेसी अपोथेके वो कर सकते हैं, उनका उनका पेशा है। Eine verletzte Teilnehmer eine starke äußere Blutung hat, तो आप उसको behandeln करो, मतलब उसको मलम लगाओ उसके ऊपर। आप सिर्फ खून को रोक सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो, कपड़ा पहना के जो भी है, लेकिन आप उसके ऊपर कोई दवाई नहीं लगा सकते, ना मलम, ना जख्म को साफ, कुछ नहीं करना है आपने इस तरह से। falsa Ein Schockzustand äußert sich durch Kältezittern, sehr blasse Haut und kalten Schweiß auf der Stirn. falsa sir तो क्या होता है आपको कैसे पता बंदा शॉक हाँ ट्यूशन में कहते जाता है? हैं अगर एक इंसान शॉक ट्यूशन क्या होता है? हाँ सर वेरा ये मतलब ये आपको जवाब देने के पहले बेहतर है कि मैं बेरो बोल दूं, आगे बढ़े, ऐसा है ना? बेरो बोल दो जैसे आपने Die höhenfreie Kreuzung ist ausgestattet mit Strukturen, Rampen, Überführung, Unterführung zur Verbindung von Straßen auf unterschiedlicher Höhe. वेरा सर Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt am Gehsteigrand eine Schulbushaltestelle an. falsa सर शाबाश शमीर। अलीना ये आपको ये साइन अलीना आपको भी नहीं पता था, अपने हाथ में उठाया, इसलिए आपको बता रहा हूँ, और नासिर आप भी सुने। ये साइन आपको मिलती है स्कूल बस के ऊपर, पीछे और आगे, दो जगह, मतलब बस के, स्कूल बस के आगे, स्कूल बस के पीछे, और बच्चों की स्कूल बस की स्टॉप होती है उधर भी है मेरी, सिर्फ तीन जगह मिलती है, बच्चों की स्कूल बस स्टॉप के ऊपर और बच्चों की स्कूल बस के पीछे और आगे, बस। ये वेरा Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Ampel an, die den Verkehr auf beweglichen Brücken oder auf Drehbrücken regelt. falsa सर Die in der Abbildung B dargestellte Zusatztafel zeigt die Zeitspannen an, in denen nur Fahrzeuge mit geradem bzw. nur solche mit ungeradem Kennzeichen verkehren dürfen.
Pasa, sir. हाँ जी, अजीना पूछे। आज ही था वो। Das Parken auf den Fahrspuren oder Fahrbahnen, die den öffentlichen Verkehrsmitteln vorbehalten sind, ist in geschlossenen Ortschaften von 22 bis 8 Uhr erlaubt. Vera, sir. मैं इंतजार भी कर रहा हूँ कि अलीना या संबित हाथ उठाए, लेकिन कोई नहीं हाथ उठा रहा। सुनो, das Parken auf der Fahrspuren oder Fahrbahn, die für öffentliche Verkehrsmittel vorbehalten ist. यानी आप पार्क करते हो, पता है सड़कों पे लेन होती है, पीले पीले लकी से तकसीम की, जहाँ पे पब्लिक बसें चलती है, कहते हैं उसके ऊपर आप गाड़ी पार्क कर सकते हो। कब? हॉट शाफ्ट के अंदर, तो रात को 10 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक। आपको किसने बोला इस दौरान में बसें नहीं चलती? वो उसका लेन इस्तेमाल टैक्सी भी करते हैं, बस भी करती है, भी करती है। ये ऐसा कोई कानून ही नहीं है कि आपको 10 बजे से 8 बजे की इजाजत है उधर उसके लेन के, सड़क के लेन के ऊपर पार्क करने की, बसें चलती है। Das Parken auf den Fahrspuren oder Fahrbahnen, die den öffentlichen Verkehrsmitteln vorbehalten sind, ist in geschlossenen Ortschaften von 22 bis 8 Uhr erlaubt. Das Fahren mit Aufblendlicht ist außerhalb der Ortschaften notwendig, wenn die öffentliche Beleuchtung unzureichend ist und wenn man keine anderen Fahrzeuge kreuzt. Das Fahren mit Aufblendlicht ist außerhalb der Ortschaften notwendig, wenn die öffentliche Beleuchtung unzureichend ist und wenn man keine anderen Fahrzeuge kreuzt. Vera. ये वेरो है। Der Führerschein der Klasse B gilt, sofern darin keine andere Einschränkung vermerkt ist und sofern die Gültigkeitsdauer nicht dem Geburtstag des Inhabers angeglichen wurde, 8 Jahre, wenn er einer Person ausgestellt oder bestätigt wird, die zwischen 50 und 70 Jahre alt ist. Pasa, sir. कुछ चंद सेकंड के लिए बाहर गए तो फौरन मेरे आने काला काली हो जाती है, देखा आपने? सूरज पड़ती है, रोशनी तो डार्क हो जाते हैं। Yes, sir. Wer strafrechtlich und zivilrechtlich für einen Verkehrsunfall verantwortlich ist, kann dem zeitweiligen Führerscheinentzug unterliegen. Vera, sir. Das Zurücklassen von gefährlichen oder giftigen Abfällen, Ölen, Flüssigkeiten, Reparaturabfällen wird nicht geahndet. Sir, इसकी समझ नहीं आई। Das gefährliche Zurücklassen von gefährliche oder giftige Abfällen। अगर आप कुछ फेंकते हो खतरनाक चीजें और या तो जहरीली चीजें, साल के तौर पे, और ऑयल, आपका पुराना तेल गाड़ी का, जो गाड़ी के अंदर का रेडिएटर का पानी होता है, और आपके जो जो स्पेयर पार्ट आपने गाड़ी के बदल दिए थे जो पुराने होते हैं, कहते हैं आप उसको सड़क पे फेंक देते हो इधर, कहते कुछ आपको मतलब क्या जुर्माना नहीं मिलेगा। Pasa, sir. Ein Fahrzeug mit nicht gut funktionierender Aufhängung steigert die Ermüdung des Fahrers beim Fahren. ये ना गलत बोल रही है, पता ये है Ermüdung, das Fahrzeug. Ein Fahrzeug mit nicht gut funktionierender Aufhängung steigert die Ermüdung des Fahrers beim Fahren. जवाब?
सर इसकी समझ नहीं आई। मैं अच्छा, समझाता हूँ। मैं समझाता हूँ। आपकी जो आउट हैंगिंग होती है ना शॉकर, वो बराबर जो आपकी झटके से बचाती है ना, जो गाड़ी के चार होते हैं शॉकर टायरों के बीच में। हाँ तो बोलो, अगर पता चल गया किसकी बात कर रहा हूँ, फोटो बताऊंगा आप। जी सर। ओके। कहते अगर वो निश फंक्शन बराबर काम नहीं करती तो स्ट्राइकर बढ़ जाती है, ड्राइवर का थकान, वो उसको बार बार सारे झटके महसूस हो रहे, वो आधा घंटा गाड़ी चला तो लगता है 8 घंटे गाड़ी चला के बेहद थक जाता है। सही बात है। अगर आपकी मेरा जो ऑफन बराबर काम करते हैं तो झटके महसूस नहीं होते, 4-5 घंटे चला लो, लगेगा 10 मिनट चला के आए हो। ये बराबर काम नहीं करती, सारे सारे सड़कों के झटके महसूस होते हैं, तो जो बंदा मंजिल पे पहुंचता है थक जाता है ना। अच्छा जरा सुन लो। Ein Fahrzeug mit nicht gut funktionierender Aufhängung steigert die Ermüdung des Fahrers beim Fahren. ये बोलते हैं एयर मोंडू कुछ और होता है, ये एयर मीडू है। चलो ठीक है, पर ये वेरो है, ये रिकॉर्डिंग है ना इनकी। हाँ ले लो या। अभी समीर को नहीं पता चला 24, लेकिन वो पूछने का दिल नहीं करता उसको, कहता तो सब जब पता चल गया तो बता दो। समझ आ गई चल गई को? नहीं सर जी, मैं दूसरी साइड से चला गया। नहीं, इस वक्त आप मौजूद थे, मैंने आपकी शक्ल देखी। चलो ठीक है, आपको तो रहने दो, फिर आपके फिर शुरू करते हैं। उस वक्त आप मौजूद थे जब ये सवाल गया था, मैंने आपकी फेस की सवाल भी एक्सप्रेशन टाइम देखी, मौजूद था, लेकिन मैं सवाल बाद सब, चला गया। और आपकी शक्ल देखी तो मुझे पता चला कि आप पता नहीं क्या है। और शायद मुझे लगा आपने सोचा था मैं क्विज के बाद में पूछूंगा, लेकिन चलो उसको बाद में भी आपको याद नहीं आया तो फिर रहने दो। शुरू हो जाओ समीर। Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt eine Kuppe an. 500 सर जी। Das abgebildete Verkehrszeichen verlangt, dass man langsamer fährt, um einen Zusammenstoß mit herumtreibenden Wildtieren zu vermeiden. वेरो सर जी। Das abgebildete Verkehrszeichen verbietet es, einem Campingfahrzeug mit einem Gesamtgewicht von 6 Tonnen zu überholen. 500 शाबाश। Das abgebildete Verkehrszeichen erlaubt es, an der Kreuzung geradeaus zu fahren. 500 Das abgebildete Verkehrszeichen ist ein Vorschriftszeichen. 500 वो शिफ्ट है। वेर देखो, मैंने बताया कौन सी, कल भी आपको मैंने फोटो दिलवाई थी कौन सी फोर शिफ्ट होती है, उसमें होता है गबोट फॉर बोट और फोफाट। ये है नहीं गबोट, वेरो सर जी। गबोट सेशन सर नहीं जी है। मैं भुल गया, 3 ਜਿਹੜੀਆਂ दसियां तो ਉਹਦੀ फोटो लेने ਜੇ अगर कर दियो तो फोटो ले ਲਈ मैं तीनों ਦੀ। केड़ा नंबर है ये वाला? नहीं नहीं, मेरा कहने ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਸਮਝਾਏ ਸੀ ਨਾ 3 ਸੈਂਡਬੋਰਡ ਫੋਰਸ਼ਾਸ ਤੇ ਉਹ ਅगर ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ उसकी ਸਮਝਾ ਦਿਓ फोटो तो फोटो लिखती है, उसकी नहीं नहीं फोटो लिखती है। नहीं नहीं हिट नहीं ली। हाँ हाँ, नहीं नहीं पता। तो क्या चाहते हो अभी, हम लोग एक कंटिन्यू करेंगे, कोई सवाल पूछना है? करो सर। नहीं नहीं, जो सवाल तो इसके बाद में पूछ लेना, क्या 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 पूछना चाहते हैं, ये पता नहीं चला। खैर, इसका जवाब दे दो। Das abgebildete वेरो Verkehrszeichen ist ein Vorschriftszeichen. वेरो ओ, Das abgebildete Verkehrszeichen kündigt die Aufhebung des zuvor auferlegten Gebots an. 500 In einer Einbahnstraße mit der in der Abbildung dargestellten Markierung darf man in der Nähe oder auf Kuppen überholen. वेरो Bei der in der Abbildung dargestellten Ampel darf man mit größter Vorsicht durchfahren, wenn das rote Licht aufleuchtet. वेरो हाँ सर। wenn ein Rotlicht aufleuchtet, तो आप große Vorsicht से durchfahren करोगे समीर। बोलते आप लाल लाइट जल रही है इशारे की, बोलते एहतियात के साथ गुजरो चौक से ऊपर से, ऐसे कह रहे हैं ना।
Bei falso, der in der Abbildung dargestellten Ampel darf man mit größter Vorsicht durchfahren, wenn das rote Licht aufleuchtet. falso, Die in der Abbildung dargestellte Ampel mit leuchtendem roten Licht schreibt den Fahrrädern vor, anzuhalten. falso, मेरा सर अगर आपको रोड लिस्ट सुनाई देती बराबर से, कहते हैं अगर ये लाल लाइट जलती है तो कहते हैं श्राइक फो करती है फारडे अनसुआल्ड गाड़ियों साइकिलों को कहते हैं रुक जाओ जब लाल लाइट जलती है, तो साइकिलानों के अंदर तुझे रुक जाओ। ये नहीं नजर आई आपको, ना सुनाई दिया आपको, दोबारा सुनो। Die in der Abbildung dargestellte Ampel mit हाँ, leuchtendem roten Licht schreibt den Fahrrädern vor, anzuhalten. वेरी वेरी Die Höchstgeschwindigkeit für Lastkraftwagen mit einem Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen beträgt auf Autobahnen 120 Kilometer in der Stunde. falso, Der Sicherheitsabstand wird beeinflusst von den Abmessungen des vorausfahrenden Fahrzeugs. वेरो, falso सर मैसून का मतलब होता है गाड़ी की साइज देख के तय करोगे वो गाड़ी कितनी बड़ी है, वो देख के मैं तय करूंगा कितना फासला रखना है मैंने। falso है, An Kreuzungen oder deren Nähe darf man nicht im Zickzack fahren, auch wenn die Einreihungsspur nur durch unterbrochene, gestrichelte Linien begrenzt ist. falso, An Kreuzung oder in der Nähe darf man nicht im Zickzack fahren। चौक के करीब तुसी इंच सांप की तरह नहीं चला सकते हो, auch wenn die Einreihungsspur nur durch unterbrochene Linien begrenzt है। बेशक भाਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਕੀਰਾਂ ਟੂਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੌਕ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਚ गाड़ी चलानी, ਇੱਥੇ कभी ਇੱਥੇ कभी चलाने की इजाजत नहीं है। ये बेरो है। वेरो, zigzag का मतलब ये होता है zigzag z के बराबर आगे पीछे। वेरो, In der dargestellten Kreuzung besetzt das Fahrzeug N die Kreuzung als letztes. वेरो, देखो एन यार, आप लोग दो ध्यान दो, इसमें सबसे पहली गाड़ी कौन सी रिप्रेजेंट करती है, मतलब चौक का इस्तेमाल करती है, गुजरती नहीं इस्तेमाल करती, कौन सी है? एन सर जी इसका आपको आरा क्या नहीं है? आप जाने ए हाँ जाने के एन जाना हाँ, तो कहते हैं एन सबसे आखिरी में चौक का इस्तेमाल करेगी। falso सर जी मैं समझिया वा कि सवाल नो कि एन सब तो बाद च जाएगी जाएगी क्या, नहीं क्या, ये कहते हैं विजिट्स है। देखो ये अल्फाज है ना, इधर वास्ते इधर ध्यान देना दोनों। विजिट्स का मतलब होता है चौक का इस्तेमाल, पहले आगे बढ़ोगी, तो एन सच में पहले आगे बढ़ती है, आखिरी थोड़ी है। पहले गुजरने वाली गाड़ी एर है, आ है, और आखिरी गुजरने वाली एन, ये बात अलग है कि एन इज लेट्स दुरुस्त फार, वो ठीक था। लेकिन इससे एर से द क्रॉस टू besetzen, सबसे पहली है चौक को इस्तेमाल करने वाली, लेट्स से नहीं है। तो हाँ तो समझ आ गई? ओके सर वेरो Das Überholen an Grundstückseinfahrten ist verboten. फाल्सो Wenn man einen Anhänger zieht, muss das Kennzeichen des Zugfahrzeugs abgenommen und an der Rückseite des Anhängers angebracht werden. वेरो ओके, फाइल से बात सुनो क्या कहता है ये। जब आप एक गाड़ी को अनहगर के साथ खींच लगाते हो ना, एक अनहगर लगाए गाड़ी के पीछे, तो कहते हैं थोड़ी गाड़ी की नंबर प्लेट है ना, उसको निकाल के फाड़ के अपने अनहर के पीछे चिपका दो, गाड़ी के नंबर प्लेट जो पीछे वाली नंबर प्लेट है, ताकि अनहगर के पीछे गाड़ी की नंबर प्लेट नजर आए। ये ऐसे करना। falso Motorradstiefel haben eine Sohle aus Stahl. सर जी समझ नहीं आया कहते हैं मोटरराड के जो जूते होते हैं ना, स्टीफल, कहते हैं उसकी जो सोल है, सोल जो जूते का नीचे का हिस्सा होता है, कहते हैं वो स्टेनलेस स्टील का बनता है। स्टाल मतलब स्टील। फाल्सो falso
Unfälle können im Zusammenhang mit der Straßenbeschaffenheit dadurch verursacht werden, dass Kreuzungen nicht angekündigt sind. फालतू कोई है बिजी हो समीर? ये बेरो है। नहीं था देखो, Unfälle können mit Zusammenhang mit der Straßenbeschaffenheit dadurch verursacht werden। क्या मतलब है? आपकी गाड़ियां ऐसे अगर सड़क के सूरत ऐसे हैं, ये वजह बन सकती है कि ऐसे सड़कों पे गाड़ियां अक्सर टकराएं। उसके बाद कहते हैं वजह कौन सी है? कहते हैं dass Kreuzungen nicht angekündigt sind। मतलब चौक को पहले से आगाह नहीं किया गया था। चौक आ रही है लेकिन किसी बोला नहीं कि चौक आने वाली है, और हम लोग हंसी में चला रहे हैं। तो उस दौरान ऐसे सड़कों पे जहाँ पे क्रॉसिंग को पहले नहीं ऐलान किया गया कि आगे जाके चौक आने वाली है, इधर गाड़ियां ठुक जाती है। और ये हाँ ऐसे ही होता है, अगर आपको पहले नहीं पता होगा कि चौक आने वाली है, अंग 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 खंडित नहीं किया गया था, तो वहां पे आपको हो सकता है ये वेरो है। दोबारा सुन लो। Unfälle können im Zusammenhang mit der Straßenbeschaffenheit dadurch verursacht werden, dass Kreuzungen nicht angekündigt sind. मेरा Wenn man einen Fahrgast ein- oder aussteigen lassen muss, ist es angebracht, dies auf der Gehsteigseite oder, falls kein Gehsteig vorhanden ist, auf dem Verkehr angewandten Seite zu tun. मेरा था जी ये भी देखो ना, ये यहाँ पे लिखा है अनगेवांडेड साइड। ये क्या बोल रही है? बोलती है अनगेवांडेड इन साइड। ये जो बोल रही है गलत, इसको गौर से सुनो, ये अल्फाज बोलती है तो ध्यान देना क्या बोल रही Wenn man einen Fahrgast ein- oder aussteigen lassen muss, ist es angebracht, dies auf der Gehsteigseite oder, falls kein Gehsteig vorhanden ist, auf dem Verkehr angewandten Seite zu tun. है। अनगेवांड बोलती है। पता क्या अनगेवांड, अनगेवांड का मतलब है कि जो ट्रैफिक है उसमें ये कह रही है उसकी अब के बाद जो जो ट्रैफिक के से मुखालिफ तरफ से सड़क दरवाजा खोलना चाहिए। अनगेवांड मतलब है ट्रैफिक वाला दरवाजा खोलना चाहिए। ये तो अच्छा हुआ लिखा हुआ जर्मन में अनगेवांड, लेकिन जो कह रही है वो अनगेवांड कह रही है। अगर मैं सिर्फ सुन के पढ़ता, मुझे पढ़ना नहीं आता, सुन के बोलता, तो मैं फालसू बोलता इसको ना। ये ऐसे कह रही Wenn थी। man einen Fahrgast ein- oder aussteigen lassen muss, ist es angebracht, dies auf der Gehsteigseite oder, falls ठीक kein है, Gehsteig vorhanden ist, auf dem Verkehr angewandten Seite zu tun. ओके अनगेवांड साइड में अब के बांड साइड है, और ये बेरो है। Ein Verletzter im Schockzustand ist nach Möglichkeit mit hochgelagerten Beinen hinzulegen. समझो फालतू था जी फालसू देखो, फिर मैं दोबारा समझ, मुझे लगता है आपको स्टेट ऑफ शॉक के बारे में ना आसिर को पता है ना आपको बराबर से पता है। गौर गौर से सुनो। जब एक रोड एक्सीडेंट होता है और एक इंसान घायल होता है जिसको बहुत सारा खून बह चुका है, इधर इधर उधर चोट लगी है, लगातार पिचकारी की तरह खून बाहर निकल रहा है, इस बंदे के जिस्म में बहुत कम खून रह गया है। ऐसी हालात में क्या होता है, उसकी चमड़ी फीकी पड़ जाती है, ओके, और उसको माथे पे ठंडे पसीने आते हैं, दिमाग तक खून नहीं पहुंचता। इसका दिल कोशिश करता है बहुत लगातार धड़क धड़क के पंप करे, पूरा खून जब तक पहुंचे। दिल को नहीं पता कि जो मैं खून पंप कर रहा हूँ वो दिमाग तक नहीं पहुंच रहा, वो बाहर सारी की तरफ बाहर जा रही है, जिस्म के बाहर। वो जितना कम होता है खून उतना ज्यादा धड़कता है। वो कोशिश करता है और खून भेजू, उनको पता नहीं खून खत्म हो गया है। तो उनको दिमाग तक खून नहीं पहुंचता। इसके लिए बंदा बात करना शुरू करता है जैसे शराबी है, जो ऐसे बात करके जिसको बराबर बयान नहीं कर पाएगा। और वो जो बात भी करता है उसका ना सर ना पैर होता है, उसको समझ नहीं आती। वो बोलता है कि भाई यहाँ मैंने कल मेरी बेटी की शादी करानी है लेकिन आज वो लड़का मिला नहीं, ऐसे बोलेगा। जब आप पता है ये बिना मतलब की बात करे से नशे में है, नशे में नहीं है, उसके दिमाग तक खून नहीं पहुंच रहा, उसका दिमाग बराबर काम नहीं कर रहा क्योंकि खून नहीं आ रहा उधर। तो कैसे पता? उसकी चमड़ी फीकी पड़ जाती है, माथे पे ठंडे पसीने आते, दिन धड़कना शुरू होता है, उसको बहुत ठंडी होती है और बहुत सिटन अल्टे सिटन, उसको ठंडी में कांप महसूस होती है ऐसे, और उसको बहुत मजा है। तो ऐसे इंसान को क्या करना चाहिए? हमें कोशिश करनी जब तक एम्बुलेंस आते ही बंदा जिंदा रहे। कैसे करो कि इसका खून पहले ब्लॉक कर दो कि खून बहना बंद हो जाए, उसको जमीन पर लेटा दो और उनके पैर 30 सेंटीमीटर जमीन से ऊंचा करके रखते हैं ताकि ये खून ना दिमाग तक पहुंच सके। क्योंकि अगर ऐसा आपने नहीं किया और एम्बुलेंस थोड़ा लेट आ गई और बंदा तब तक उसका दिल धड़क रहा है, मगर मर नहीं गया, लेकिन दिमाग तक खून पहुंचना कब से बंद हो गया था। तो अगर दिमाग के सेल्स मर जाएंगे तो अगर आप बंदा जिंदा भी रह जाता है
तो हो सकता है कि पूरी जिंदगी उसके सारे जिस्म के हिस्से काम ना करे, वो कद्दू के बराबर बैठ के ऐसे सेप में तो उसको खाना खिलाना पड़े, मुंह ना खोल सके, ऐसा हो जाएगा। इसके लिए या तो मर जाएगा या तो जिंदा रहेगा, तो ऐसा रहेगा, कद्दू की एक सब्जी की तरह जिंदा रहेगा। तो ये करना जरूरी है कि आपके hochgelagerte Beine hinzulegen, ये wäre है। Ein Verletzter im Schockzustand ist nach Möglichkeit mit hochgelagerten Beinen hinzulegen. Vero, Bei einem Verkehrsunfall muss der Helfer dem Opfer Medikamente verabreichen, falls dieses diesbezüglich keine medizinische Kenntnis besitzt. vero, क्या 10 मिनट भी नहीं गुजरे, मैं तो 10 में मना किया है, सर ना दवाई देने की इजाजत है, ना किसी मल लगाने की इजाजत है। तो कहता है आपने मेडिकमेंट के ऊपर ऑपरेशन करनी है, उन्हें दवाई खिला दो। बेशक तो डॉक्टर कह भी रहे, तो डॉक्टर नहीं है फिर भी खिला दो दवाई। कहते हैं मेडिकमेंट फॉर ऑपरेशन फर्स्ट दिसे हाँ, इंग्लिश का, इसके बावजूद कि तुम्हें डॉक्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता, फिर भी दवाई खिला दो यार, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। ये फालसो है। Die Verkehrsinsel ist der Teil der Stadt mit dem höchsten Verkehrsaufkommen. फालतू, Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt die auf der jeweiligen Fahrspur vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit an. vero, क्या फालसो है, वेरो है ना नासिर। हाँ जी। Mindestgeschwindigkeit बता रहे, कट तो कट 67 है। हम्म, Das abgebildete Verkehrszeichen zeigt eine Haltebucht für Autobusse an. फालतू, Die dargestellte Zusatztafel zeigt an, dass man eine mäßige Geschwindigkeit einhalten soll, um nicht auf die vorausfahrenden Lastkraftwagen aufzufahren. vero, Beim Parken muss der Fahrer, der das Fahrzeug auf einer ansteigenden Straße stehen lässt, den 4. Gang einlegen. फालतू, Das Betätigen der Fahrtrichtungsanzeiger ist nicht notwendig, wenn man das Fahrzeug parken muss und sich dazu auf den rechten Fahrbahnrand hin bewegt. फालतू, Den Führerschein der Klasse A kann man mit stufenweisem Zugang mit 20 Jahren erlangen, wenn man seit mindestens 2 Jahren einen Führerschein der Klasse A2 besitzt. फालतू, अगर आपके पास 18 साल की उम्र में A2 है, तो 20 साल की उम्र में आप प्रैक्टिकल टेस्ट देके लाइसेंस A हासिल कर सकते हैं। ये वेरो है। हाँ जी। vero, Die Kfz-Haftpflichtversicherung deckt nur an die Personen entstandenen Schäden, da für die Schäden an Sachen eine Art von Vertrag notwendig ist. फालतू, Um den Lärm zu verringern, ist es notwendig, den abgenutzten Schalldämpfer durch einen neuen zu ersetzen, der für den jeweiligen Fahrzeugtyp zugelassen ist. हाँ जी, समझ गया सवाल जी। Um den Lärm zu verringern, अगर आप चाहते हो गाड़ी कम शोर मचाए, इसे नोटवेंडिंग जरूरी है कि दिन abgenutzte Schalldämpfer, आपका साइलेंसर तो abgenutzt हो गया, इस्तेमाल हो चुका है, durch ein neues zu ersetzen, उसको नए से बदल दो। Den von den jeweiligen Fahrzeugtyp zugelassen, जो आपकी गाड़ी के लिए मंजूर शुदा दिया गया है, वो वाला इस्तेमाल करना है। और ये वेरो है। Wenn man lange und steile Abfahrten befährt, ist es angebracht, im Leerlauf zu fahren, um Kraftstoff zu sparen und die Bremsen zu schonen. फालतू, शाबाश। अभी आप लोग सारे के सारे ना एक स्केदा करके मुझे भेजना। एंटी क्रॉसिंग आज लेट्स थे, मैंने अब चेंज समझाने के बाद मैंने चेंज नहीं किया था। मैंने आपको समझाया कि गलत है, फालसो है, लेकिन मैंने वो आपका जवाब जो आपने वीरो कहा था ना, आसिर ने, इसने कौन जवाब मुझसे समीर ने, तो मैंने समझाने के बाद उसको बदला नहीं है, सारे के सारे जवाब सही थे। तो आप अभी सारे स्केदा करके मुझे भेजो, कल मिलते हैं पंक्चुअली 4 बजे। देखो अगर आपको ना, जैसे आज समीर आते, अलीना और नासिर, आप इटालियन वाले 3:30 बजे भी आ सकते हो, तो जब मैं मुझे आप नजर आते हो तो उनकी क्विज में जर्मन में कराऊंगा, मैं बेशक उनको बोलूंगा इटालियन में, लेकिन आपको जर्मन में पीछे पढ़ाई आती है। अगर आपको इससे फायदा है तो जल्दी आना, नहीं आता 3-4 बजे देते हैं। खुदा हाफिज। जी, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह।
ओके सर।